Friends, now let's see regarding the radioactive disintegration. Radioactive disintegration क्या था? When a parent nucleus or a radioactive substance emits an alpha or beta radiation and converts into some other nucleus, then that is called radioactive disintegration or radioactive transformation or radioactive decay. बराबर है. अब इसमें अल्फा या बीटा पार्टिकल का एमिशन, अल्फा या बीटा एमिशन होता है. तो चलो हम लोग देखते हैं उस दौरान ड्यूरिंग दोस डिसइंटीग्रेशन व्हाट हैपेंस. पहले लेते हैं अल्फा डीके के बारे में. अल्फा डीके मतलब अल्फा डिसइंटीग्रेशन, यानी कि मीनिंग ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. यानी when a radioactive nuclei disintegrates by emitting an alpha particle, that's called alpha decay. Now alpha particle यानी क्या? तो each alpha particle is nothing but it's a helium nucleus. Each alpha particle is nothing but a helium nucleus. अब helium nucleus यानी क्या? That is He24. It is combination of two protons and two neutrons. See the symbol itself. Z is 2 मतलब दो प्रोटॉन हो गए. A is 4 यानी 4 न्यूक्लियंस, यानी कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म्स 4 न्यूक्लियंस. बराबर है. डिफरेंस है तो 4 minus 2 is 2, that is 2 neutrons. Right? So each alpha particle is a combination of two protons and two neutrons. Each alpha particle is a combination of two protons and two neutrons, which we call as He24. इसलिए इस अल्फा पार्टिकल को we normally denoted by, we represent it by He24. Alpha particle is represented by He24. It's a combination of two protons and two neutrons. Okay. Now let's see what happens during alpha emission. तो उसके लिए suppose X, ZA is a parent nucleus. A parent nucleus X having atomic number Z and atomic mass number A converts into some other daughter nucleus Y on emission of alpha particle यानी कि He24. Now Z प्रोटॉन्स थे, उसमें से दो चले गए, तो व्हाट रिमेन्स Z-2. A न्यूक्लियंस थे, 4 चले गए, रिमेनिंग A-4. यानी कि when a parent nuclei disintegrates by emission of an alpha particle, its atomic number reduces by 2 while atomic mass number reduces by 4. फिर से एक बार, when a parent nucleus disintegrates by emission of an alpha particle, ये alpha particle emit किया, then its atomic number reduces by 2 while atomic mass number reduces by 4. चलो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. यूरेनियम 92-238 ये हो गया रेडियो एक्टिव यूरेनियम का न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल. इट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, यानी कि 92 में से दो प्रोटॉन चले गए, बचे 90 प्रोटॉन्स. 238 में से 4 न्यूक्लियस चले गए, बचे 234 न्यूक्लियस. अब ये 90 वाला पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कौन सा है? तो यूरेनियम से दो पोजीशन पहले comes thorium. So what we say is that uranium converts into thorium on emission of an alpha particle. Uranium converts into thorium on emission of alpha particles. उसका एटॉमिक नंबर देखो 2 रिड्यूस हुआ, एटॉमिक मास नंबर 4 रिड्यूस हुआ. बराबर. दिस व्हाट हैपेंस व्हेन एमिशन अकर्स. अब ये एमिशन कब पॉसिबल होगा? When will alpha particle emission be possible? When total energy of parent nucleus is more than total energy of प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल एमिटेड. इन दोनों की टोटल एनर्जी से अगर इसकी एनर्जी ज्यादा हुई, यूरेनियम की एनर्जी ज्यादा हुई, तो ही एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल अकर. एंड कितनी ज्यादा हुई? इसके कंपेयर में इसकी ज्यादा यूरेनियम की एनर्जी ज्यादा एज कंपेयर टू दिस वन. तो जो एक्सेस एनर्जी है दैट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड अल्फा पार्टिकल मूव्स विद दैट मच एनर्जी. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल अकर ओनली व्हेन नॉर्मली फॉर Z इक्वल टू ग्रेटर देन 83. यानी कि एक्टिनाइट और लैंथेनाइट सीरीज में ये नॉर्मली अल्फा पार्टिकल एमिशन देखने को मिलेगा. ओके, ये हो गया रिगार्डिंग अल्फा पार्टिकल एमिशन. प्लीज गो थ्रू दिस. फिर चलते हैं आगे बीटा एमिशन के बारे में. नेक्स्ट चलते हैं बीटा एमिशन के बारे में, बीटा डिसइंटीग्रेशन के बारे में. यानी कि व्हेन अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अंडरगोस बीटा डिसइंटीग्रेशन, दैट मींस एमिशन ऑफ beta particles takes place. Emission of beta particles takes place. Now beta particles यानी क्या? तो there are two types of beta particles. एक तो beta negative and दूसरा होता है beta positive. Beta negative क्या है? It's an electron. तो denoted by E-1 0.
इट्स एन इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय E माइनस 1 0। ये कैसा सिंबल हुआ? तो देखो ए नंबर इज 0, तो नो न्यूक्लियन यानी नो प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, ई जीरो, ए इक्वल टू 0 यहाँ पे इसलिए। एंड ये माइनस 1 मतलब क्या है? जेड अगर पॉजिटिव होता तो उतने प्रोटॉन्स, जेड अगर 0 होता तो नो प्रोटॉन्स, जेड इक्वल टू नेगेटिव है मतलब उतना डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव मतलब प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये माइनस 1 0 हो गया। तो जेड नेगेटिव मतलब क्या हुआ? एक प्रोटॉन की नेगेटिवनेस यानी सामने एक इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल। तो बीटा नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन व्हाइल बीटा पॉजिटिव इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? तो इट इज डिनोटेड बाय E प्लस 1 0, E प्लस 1 0। ना Z इज प्लस 1 मतलब प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, नहीं A 0 मतलब नो न्यूक्लियन मतलब नो प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये प्लस 1 क्या इंडिकेट करता है? इट्स नॉट अ प्रोटॉन नॉर अ न्यूट्रॉन, नो प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट, इट इज द इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट दैट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन वही है, चैप्टर नंबर 1 में हमने इसे डिस्कस भी किया था। इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटली सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, जस्ट टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव, बस उतना ही फर्क दोनों में, बराबर है। अब बीटा पार्टिकल का जब एमिशन होगा तब आइदर बीटा नेगेटिव एमिटेड और बीटा पॉजिटिव एमिटेड। अगर बीटा नेगेटिव एमिट होता है तो क्या होता है? द पेरेंट न्यूक्लियस XZA कन्वर्ट्स इनटू डॉटर न्यूक्लियस Y ऑन एमिशन ऑफ अ बीटा नेगेटिव, ये बीटा नेगेटिव एमिट हुआ, बराबर है। Z में से इधर माइनस 1 हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? Z प्लस 1 यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 ऑन एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव व्हाइल A रिमेंस एज इट इज, क्योंकि कुछ नहीं एमिट हुआ है, no nucleons are emitted, so atomic mass number remains the same, Z value increased by 1, Z value increases by 1, बराबर है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, PB 82214 emits a beta particle, बीटा नेगेटिव, तो Z एक बढ़ गया 83 हो गया एंड ये 214 हो गया, एंड 83 पोजीशन में आता है बिस्मथ, तो लेड कन्वर्ट्स इनटू बिस्मथ ऑन एमिटिंग अ बीटा नेगेटिव पार्टिकल, लेड कन्वर्ट्स इनटू बिस्मथ ऑन एमिटिंग अ बीटा पार्टिकल, बराबर है। तो इसमें देखें तो क्या होता है? XZA पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू डॉटर न्यूक्लियस ऑन एमिशन ऑफ अ बीटा पॉजिटिव, दिस इज बीटा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव एमिट करके कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा? Z में से एक गया तो Z माइनस 1 एंड A एज इट इज, Z माइनस 1 A एज इट इज। अब क्वेश्चन यहां उठता है, देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। इसके एग्जांपल में हम लोग लेंगे सोडियम 1122 एमिट्स अब बीटा पॉजिटिव, अब 11 में से एक गया तो यहाँ 10 बचा, एंड 22 में से एक भी नहीं तो ये 22 एज इट इज, सॉरी 22 as it is, and 10 number position पे आता है neon in the periodic table. So sodium converts into neon on emission of beta positive. Sodium converts into neon on emission of beta positive particle. अब यहाँ पे जब भी ये रिएक्शन होगा तब हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन के साथ में ये एंटी न्यूट्रिनो आएगा एंड पॉजिट्रॉन के साथ में ये न्यूट्रिनो आएगा, दिस इज न्यूट्रिनो, दिस पार्टिकल इज न्यूट्रिनो, एंड ये पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, इसलिए ऊपर बार बनाया हुआ है एंटी न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है क्या चीज? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आर जस्ट पार्टिकल्स, दीज आर नथिंग बट क्वांटम ऑफ एनर्जी, छोटे पैकेट एनर्जी के, छोटे छोटे पाउच एनर्जी के बोल सकते हैं। दे आर एमिटेड अलॉन्ग विद बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव, दे हैव वीक इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, इसलिए वो निकल जाते हैं साथ साथ में, यानी बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव एमिट रहो उसके साथ साथ में न्यूट्रिनो निकल जाते हैं, क्यों? दे आर वीकली कनेक्टेड टू द पेरेंट न्यूक्लियस, तो निकल रहा है तो साथ साथ में निकल जाते हैं। दे आर जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जीज, दे हैव नथिंग टू डू विद एनी मैटर, ये मैटर नहीं है। दूसरा, दे आर वेरी स्मॉल माइन्यूट इन नेचर, नॉट डिटेक्टेड इजीली, क्योंकि ये निकल के सीधा कहीं पे भी देखें ना, दे आर हाईली इंटरेक्टिव, कहीं पे भी इंटरेक्ट हो जाएंगे, तो इट सेड दैट आजू बाजू तो कोई भी चीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं न्यूट्रिनो, दीज आर जस्ट एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, कहीं पे भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इनके बारे में ज्यादा कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल, एंड सेकेंडली इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इज नॉट येट बीइंग डिस्कवर्ड, तो ये एक हाइपोथेसिस बन गया उसके साथ साथ
क्योंकि एनर्जी डिफरेंस आता है व्हाइल कैलकुलेटिंग एनर्जी, देयर इज सम एनर्जी डिफरेंस इन दैट रिएक्शन, तो एनर्जी डिफरेंस को यहाँ पे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बोल देता है। अब एक और बात, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल, तो यहाँ पार्टिकल है या एंटी पार्टिकल है, तो यहाँ पार्टिकल है, ये उसका एंटी पार्टिकल, यानी यहाँ पे जोड़ी हो गई पार्टिकल की विद एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो, एंड यहाँ पे एंटी पार्टिकल विद पार्टिकल, न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल, उसका एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है। यानी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द स्पिन, पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल की जोड़ी, एंटी पार्टिकल के साथ पार्टिकल की जोड़ी, ये स्पिन को एडजस्ट करने के लिए अरेंजमेंट होता है। ओके, तो यहाँ एंटी न्यूट्रिनो विद इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, उसके बाद एक एंटी पार्टिकल आ गया, ये एंटी पार्टिकल उसके बाद पार्टिकल आ गया, दैट वे द स्पिन इज कॉम्पेंसेटेड नाउ। क्लियर, ये हो गया। दूसरी एक बात, क्वेश्चन ये आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, नाउ रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन, हियर रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस इटसेल्फ। अब न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, हाउ इज इट पॉसिबल, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, हाउ डज इलेक्ट्रॉन गेट एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, कोई आइडिया नहीं आ सकता, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ध्यान से देखो तो a माइनस जेड आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, a माइनस जेड माइनस प्लस वन, a माइनस जेड प्लस वन, यानी कि a माइनस जेड माइनस वन, ये नया न्यूट्रॉन नंबर हुआ, a माइनस जेड माइनस वन, a माइनस जेड इज ओल्ड नंबर, तो n माइनस वन, यानी न्यूट्रॉन नंबर एक रिड्यूस हुआ, पेरेंट से न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन कम हुआ, तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन and in the process emits an electron, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट्स इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, बराबर है। इलेक्ट्रॉन कैनॉट लिव इन न्यूक्लियस, सो इट इज थ्रोन आउट इन फॉर्म ऑफ बीटा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिसाइड इन द न्यूक्लियस, सो इज थ्रोन आउट इन फॉर्म ऑफ बीटा नेगेटिव, व्हाइल प्रोटॉन रिमेन इनसाइड, इससे देखो प्रोटॉन नंबर एक बढ़ गया, न्यूट्रॉन एक कम हो गया, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, प्रोटॉन नंबर बढ़ गया, न्यूट्रॉन नंबर कम हुआ, एंड साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ व्हिच इज थ्रोन आउट इन फॉर्म ऑफ बीटा नेगेटिव, दैट इज व्हाट हैपेंस, एंड साथ में थोड़ी एनर्जी भी आ गई, लिबरेट हो गई, दैट्स एंटी न्यूट्रिनो, बराबर है। तो इन द न्यूक्लियस दिस फिनोमेनन अकर्स दैट अ न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट्स इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, तो अगर न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता रहेगा और ऐसा ही काम चलता रहा तो माइट बी इम्बैलेंस माइट अकर, तो सामने पॉजिट्रॉन का एमिशन कैसे बताते हैं, अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए, यहां पे देखो तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया, यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव, तो न्यूट्रॉन के साथ एक पॉजिटिव आ गया, तो हो गया टोटल चार्ज बैलेंस दोनों साइड ना। अब क्या बोलते हैं इसमें, बीटा पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन के एमिशन के दौरान क्या बोलते हैं, अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन, in the process of positron is produced which is thrown out in form of beta positive. This is what happens during the beta emission. This is what happens during the beta emission. यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट्स, न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट्स into proton and electron is produced which is thrown out in form of beta negative, while proton disintegrates into neutron, in the process of positron is produced which is thrown out in form of beta positive particle. क्लियर, तो ये फिनोमेनन चलता है बीटा एमिशन के द्वारा, बराबर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिसइंटीग्रेशन होता है। क्लियर, जस्ट गो थ्रू दिस, आगे चलते हैं फिर गैमा रे के बारे में। वन मोर थिंग टू बी एडेड फॉर बीटा एमिशन, बीटा नेगेटिव का एमिशन यूजुअली हैवी पार्टिकल्स में होता है, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का केस है वो। बीटा पॉजिटिव एमिशन इज यूजुअली फॉर लाइटर न्यूक्लियर विच इज इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। हमने आगे इक्वेशन में देखा था कि सोडियम इज अ स्टेबल एलिमेंट, तो सोडियम का न्यूक्लियस वॉज स्टेबल, हमने एग्जांपल जो लिया था सोडियम कन्वर्टिंग टू नियॉन, तो सोडियम वॉज स्टेबल, बराबर है, बट एमिटेड बाय कन्वर्टिंग टू नियॉन बाय एमिशन ऑफ अ बीटा पॉजिटिव। यहाँ पे इक्वेशन पूरा कंप्लीट नहीं था, जस्ट एक एग्जांपल है, पर सोडियम कन्वर्ट्स इनटू नियॉन, वेयर नियॉन को देखो तो 1020 के बदले 1022 है, तो दैट्स अ रेडियो एक्टिव नियॉन, तो सोडियम स्टेबलाइज में से अनस्टेबल नियॉन में कन्वर्ट हुआ एंड अ बीटा पॉजिटिव वाज एमिटेड। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स, बीटा पॉजिटिव एमिशन अकर्स यूजुअली इन लाइटर न्यूक्लियर, हेवियर न्यूक्लियर में वो देखने को नहीं मिलेगा, हेवियर न्यूक्लियर में यूजुअली बीटा नेगेटिव का एमिशन होगा। ओके, अब चलते हैं गैमा रे एमिशन के बारे में। गैमा रे एमिशन यानी क्या, तो एमिशन ऑफ गैमा रेज, खास ध्यान रखें, यहाँ पे हमने नोट किया एमिशन ऑफ गैमा रेज, यहाँ पार्टिकल नहीं लिखा है, देखो क्यों,
क्योंकि गैमा रे इज जस्ट रेडिएशन एमिटेड सर, एनर्जी एमिटेड। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखें। तो पहला तो नेवर एमिटेड इंडिपेंडेंटली, गैमा रेज आर नेवर एमिटेड इंडिपेंडेंटली, कभी भी अकेला गैमा रे एमिट नहीं होगा। एमिटेड आइदर आफ्टर either sorry, gamma rays are emitted only after emission of अल्फा और बीटा। अल्फा या बीटा एमिट हो उसके बाद ही गैमा रे का एमिशन होगा। एंड दे ऑलवेज फॉलो द एमिशन ऑफ अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, दे आर नेवर एमिटेड इंडिपेंडेंटली। सेकेंडली, ड्यू टू एमिशन ऑफ गैमा रे देयर इज नो चेंज इन जेड और ए। अल्फा एंड बीटा एमिशन में देखा था कि जेड एंड ए आर चेंजिंग, बट गैमा रे एमिशन में देयर इज नो चेंज इन ए और जेड और ए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास समूह में कोई भी चेंज नहीं होता गैमा रे के एमिशन में। तो फिर ये ऐसा होता क्यों है? एक तो उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता जेड और ए को, दूसरा कभी भी इंडिपेंडेंटली एमिट नहीं होता। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन गैमा रे? तो व्हेन एन अल्फा और बीटा रे आर एमिटेड, व्हेन अल्फा और बीटा इज एमिटेड, द डॉटर न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। द डॉटर न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट. In order to come to the ground state, it has to emit. It has to reduce its energy, so emit some radiations. यानी some photons are emitted with specific energy. अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देखो तो नोट्स में एक एग्जांपल दिया है कि कोबाल्ट converts into nickel on emission of beta negative. Cobalt converts into nickel on emission of beta particle. Now this nickel has somewhat high energy, यानी कि excited form में. In order to come to ground state, it emits certain energy, which comes out in form of radiation. निकल ही रहेगा, सेम टू सेम है, बट थोड़ी एनर्जी रिड्यूस हो गई। फिर से अभी भी अनस्टेबल है, तो एक और रेडिएशन एमिट करता है एंड कम्स टू ग्राउंड स्टेट। ये जो रेडिएशन एमिट हुए उनकी एनर्जी मेजर की, राउंडली 1.13 या 1.2 जितनी एनर्जी है एमिटेड, 1.13 और 1.2 जितनी एनर्जी एमिट होती है, 1.7 या 1.3 द वैल्यूज आर गिवन। अब उन एनर्जी को से ये एमईवी, इतनी एमईवी एनर्जी का एमिट हुई सपोज, तब ये एनर्जी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट द वेवलेंथ। कैसे? E इज इक्वल टू hc लैम्डा, तो लैम्डा विल बी hc/E। एमईवी से जूल में कन्वर्ट करके अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी इनटू 10⁻⁻13 मीटर में आता है, बराबर है। यानी कि हम जानते हैं कि 10⁻11 मीटर तक एक्सरेज होती है, उससे कम वेवलेंथ वाले सारे गैमा रेज है। मतलब ये जो एमिट हुआ 10⁻13 वाला, दीज आर गैमा रेज। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि ये रेंज बिलो 10⁻11 इज गैमा रेज, तो यहाँ पे गैमा रे एमिट होती है। ख्याल आ गया? तो ये हो गया रिगार्डिंग गैमा रे एमिशन। सो वेदर इट इज अल्फा, बीटा और गैमा रे एमिशन, देयर आर चेंजेस अकरिंग इन द सब्सटेंस which leads to conversion of one substance to other substance, one into other, or reducing the energy level of the product nucleus. Product might be radioactive, may not be radioactive. मान लो x ने एमिट किया कुछ और बना y ने एमिट किया कुछ बिना z ने कुछ एमिट किया बना a। अब x ने एमिट किया समथिंग एंड कन्वर्ट इनटू y, अगर y रेडियोएक्टिव है तो वो फिर कन्वर्ट होगा, वो अगर रेडियोएक्टिव तो फिर कन्वर्ट होगा, एंड दिस कन्वर्जन कंटिन्यूस till a stable nucleus occurs. Stable nucleus कौन है? लेड। तो एक्टिनाइड या लैंथेनाइड सीरीज में ऐसा कंटिन्यू होता रहता है एमिशन, कब? जब तक लेड पे ना आके रुके। एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव सीरीज, इसको बोलते हैं रेडियोएक्टिव सीरीज। द लाइन along which they go emitting alpha or beta radiation, this becomes a radioactive series. All the there are 4 radioactive series working. ये चार सीरीज टर्मिनेट कहाँ पे होती है? लेड पे। ओके पर हमारे लिए उतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। इन फ्यूचर इफ यू आर स्टडिंग फिजिक्स प्योरली, दैट इज यू आर गोइंग टू बीएससी एंड परस्यूइंग योर एमएससी आल्सो लेटर, तो आप इनकी डिटेल्स में जा सकोगे, ये हो गया रिगार्डिंग अल्फा, बीटा, गैमा एमिशन। चलो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो मेंशन किया था उसके बारे में बात करते हैं। आगे जो सारी बातें हुई नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की, बीटा पॉजिटिव टाइम पे एक वर्ड निकाला मैंने, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। वो क्या चीज है? नाम खुद बताता है, एक्टिविटी ऑफ एमिटिंग रेडिएशन आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल एमिशन ऑफ रेडिएशन मतलब क्या? सम स्टेबल न्यूक्लियर। स्टेबल न्यूक्लियर मतलब क्या? उसको कोई एमिशन करने की जरूरत ही नहीं, क्या ऑलरेडी स्टेबल है। व्हाई डज रेडिएशन गेट एमिटेड? तो बेसिक क्या है उसका फिलॉसफी?
The radiation is emitted because the heavier nuclei is unstable. Heavier nucleus usually unstable होता है. In order to gain stability, it has to release something so that stability occurs. हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं ओबेस पर्सन यानी हैविंग ओवरवेट पर्सन जिसका वेट नॉर्मल से काफी ज्यादा है, तो दिस टाइप ऑफ पीपल डू नॉट फाइंड कंफर्ट इन देयर लाइफ. तो दे आर यूजुअली अनस्टेबल, उनकी हेल्थ अनस्टेबल रहती है, मूवमेंट स्टेबल नहीं होता है, बैठना हो तो पलाठी मार के बैठ नहीं सकते, खड़े रहना हो तो ज़्यादा देर खड़ा रहना उनके लिए मुश्किल है, सपोर्ट लेते हैं या कुछ भी होता रहता है उनके लिए, उनकी तकलीफें कंटिन्यू रहती है क्योंकि इट्स अ हैवी बॉडी, सो अनस्टेबल. इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी ही हैज टू, द पर्सन हैज टू रिड्यूस हिज वेट, हिज और हर वेट. बराबर, ओबेस पर्सन हैज टू रिड्यूस हिज वेट इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी. वैसे ही न्यूक्लियस में भी सेम चीज देखने को मिली है कि हैवी न्यूक्लियर आर अनस्टेबल, सो इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी दे हैव टू रिलीज समथिंग. अब वो रिलीज करते रहेंगे नेचुरल फॉर्म में, इसलिए उसको बोलेंगे इट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. पर लाइटर न्यूक्लियर तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उन्हें क्या जरूरत है एमिशन एमिट करने के रेडिएशन? नहीं, दे डोंट हैव एनी रीजन फॉर इट. बट इफ दे आर आर्टिफिशियली इंस्टिगेटेड, वर्डिंग यूज करो मैं क्यों प्योरली आर्टिफिशियली इंस्टिगेटेड, यानी जानबूझ के उनको इंस्टिगेट करो कि कुछ एमिट करे, तो व्हाट हैपेंस? आर्टिफिशियल इंस्टिगेशन कैसे दोगे? बाय बॉम्बार्डिंग सम पार्टिकल ऑन इट. बराबर, बाय बॉम्बार्डिंग सम पार्टिकल ऑन इट, तो पार्टिकल अनस्टेबल बनेगा एंड द न्यूक्लियस, दैट लाइटर न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल ऑन गेनिंग दैट पार्टिकल. तो स्टेबिलिटी रिसीव करने के लिए इट हैज टू एमिट समथिंग. तो वो स्टेबल न्यूक्लियस विच वाज नॉट रेडी टू डू एनीथिंग is getting instigated and thus emit some alpha particle, some particle, कोई भी एक पार्टिकल एमिट करेगा. ये बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट हो गया. बराबर है. चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑक्सीजन 816 स्टेबल, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन दे मारा. नहीं तो लेट्स से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 714 स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, उस पर एक न्यूट्रॉन दे मारा, न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया उसके ऊपर, तो व्हाट हैपन? 7 sorry this will be 7 and 15 will be formed. अब ये 7 and 15 क्या चीज है? गड़बड़ होगी, चलो जस्ट अ मोमेंट. हाँ, नाइट्रोजन स्टेबल न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल He24 बॉम्बार्ड किया. अब सिचुएशन क्या होगा? इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन 817. साथ में क्या एमिट होगा? तो देखो साथ में 2 टोटल मान, तो 7 and 2 9, यहाँ पे 8 है तो 1 आएगा, Z नंबर 1 आएगा. ऊपर 14 + 4 18, यहाँ 17 है तो 1 आएगा. तो 1 न्यूक्लियन दैट इज प्रोटॉन, तो ये सिंगल प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया. प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय H11 बिकॉज इट्स अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज एमिटेड. अब नाइट्रोजन इज अ स्टेबल एलिमेंट, N714 इज अ स्टेबल न्यूक्लियस. विल इट एवर एमिट प्रोटॉन? वो प्रोटॉन क्यों एमिट करे? ऑलरेडी स्टेबल है. पर जब उसे बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से, तो उसने अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया, थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो गया. सो टू अचीव स्टेबिलिटी उसने प्रोटॉन एक रिलीज कर दिया, जो कंबाइन हुआ ना उसमें से प्रोटॉन रिलीज हो गया एंड OH17 इज फॉर्म. अब यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन इज स्टेबल राइट नाउ? नहीं, OH16 इज स्टेबल फॉर्म, ये OH17 है, तो ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन हो गया, रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? इट बिकम्स द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि यहाँ अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ. स्टेबल न्यूक्लियस बेचारा स्टेबल था ऑलरेडी, पर जबरदस्ती बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल, तो कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन एंड अ प्रोटॉन इज एमिटेड. ये जो फिनोमेनन है, emitting the protons, emitting a particle on artificial instigation, bombardment by alpha particle. This phenomenon is called artificial radioactivity. ये तो सिचुएशन कैसा है कि डॉग्स बाइट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. लोग बोलते हैं कुत्ता दिखा तो डर गए, भागे, बोले काटेगा तो. अरे क्यों काटेगा? आप अगर उसे कुछ नहीं करे तो कुछ नहीं करेगा. पर अगर आप जानबूझ के उसकी पूंछ को मंत्रोगे या उसको कुछ पत्थर मारोगे तो क्यों छोड़ेगा? द पर्सन विल बी गेटिंग एक्साइटेड आर्टिफिशियली, तो तुम पर दौड़ेगा.
अगर तुम शांति से जा रहे हो तो डॉग विल नेवर मूव टुवर्ड्स यू। बस चुपचाप चलते रहो, अपना काम करते रहो, बैठा है तो बैठे रहे बाजू में। द स्ट्रे डॉग्स डू नॉट बाइट अनलेस एंड अनटिल इंस्टिगेटेड आर्टिफिशियली। हमने देखा है रात को कई लोग निकलते हैं, डॉग्स अपने स्ट्रे डॉग्स आर ऑलमोस्ट डूइंग देयर ओन वर्क, पर जब आप निकलते हैं तो आपकी तरफ देखता है, अगर उसको फील होता है कोई गड़बड़ वाला केस है तो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, बाकी नहीं दौड़ेगा। अब हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ यंगस्टर्स ऐसे भी हैं, व्हीकल पे 3 सवारी निकलेंगे, 2 व्हीलर पे 3 सवारी निकलेंगे, एंड फिर जब डॉग्स बाजू में होंगे, स्ट्रेट रात के टाइम नॉर्मली ऐसा करते हैं, डॉग्स आसपास में हो तो अपने चप्पल नीचे घिसाएंगे, उससे आवाज होगा, ड्यू टू विद द डॉग गेट्स इंस्टिगेटेड, कुछ गड़बड़ हो रही है तो भौंकना शुरू करेंगे, पीछे दौड़ना शुरू करेंगे। वर दोज डॉग्स कमिंग टू यू डायरेक्ट? नॉर्मली नहीं। पर क्यों है? क्योंकि आपने ये आर्टिफिशियल इंस्टिगेशन किया। सो दिस बिकम द केस ऑफ आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी। जानबूझ के उसको इंस्टिगेट करने का भी, तू कुछ एमिट कर, रेडिएक्टिविटी। हाँ, होता क्या है, अब पेरेंट न्यूक्लियस, हम इसको यूं डिनोट, इसको हम जनरली यूं बोलेंगे ए, पेरेंट न्यूक्लियस या फिर टारगेट न्यूक्लियस, bombarded with the suitable projectile, converts into a product nucleus and a particle is emitted। बराबर है। A is a target nucleus, जिसके ऊपर टारगेट किया, टारगेट न्यूक्लियस। A is a suitable projectile, suitable projectile, इसको प्रोजेक्टाइल बनेंगे, suitable projectile, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, कुछ भी ले सकते हैं। B is the product nucleus, जो प्रोड्यूस हो, अन्य साथ में जो एमिट हुआ वो होता है ये एमिटेड पार्टिकल। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द इक्वेशन फॉर आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी प्रोसेस। जैसे इसमें सारे न्यूक्लियस की बातें चलती है, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलेंगे। प्लस सम एनर्जी रिलीज, जिसको हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। बराबर है। क्यू वैल्यू कैसे मिलेगा? तो क्यू वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मास डिफेक्ट दोनों का, क्या, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ स्मॉल ए, इन दोनों का मास का टोटल, माइनस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ बी, प्रोडक्ट न्यूक्लियस का टोटल मास, एंड ये जो पूरा हुआ इनटू सी स्क्वायर करें, इनटू सी स्क्वायर करें, तो ये हो गया क्यू। यानी टोटल एनर्जी हियर माइनस टोटल एनर्जी हियर इज द क्यू वैल्यू। टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट गिव्स यू क्यू वैल्यू। ये क्यू वैल्यू है। बराबर है। अब अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है मतलब एनर्जी यहां पर है प्लस पे, मतलब एनर्जी लिबरेट हुई, दिस कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है एक्सोथर्मिक, और क्यू अगर नेगेटिव है तो मतलब यहां पे प्लस होगा, तो एंडोथर्मिक हो गया केमिस्ट्री के हिसाब से। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन केमिस्ट्री के हिसाब से, पर फिजिक्स में न्यूक्लियस में इसको एक्सोअर्गिक बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंडोअर्गिक, है वही कॉन्सेप्ट। If the energy liberated during the process, exoergic reaction, nuclear reaction, if it is absorbed during the process, तो endoergic reaction, दोनों हो सकते हैं। क्लियर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। बराबर। अच्छा, दूसरा, ड्यूरिंग एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन हमने प्रोटॉन नंबर मैच किया, इक्वेट किया, दैट मीन्स चार्ज, जो भी चार्ज है पॉजिटिव प्रोटॉन्स का ही है, तो चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज लेफ्ट साइड पे, टोटल चार्ज राइट साइड पे सेम। ऊपर एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट्स मास, तो मास भी बैलेंस करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास आल्सो ऑकर्स, तो चार्ज भी कंजर्व होता है, मास भी कंजर्व होता है, और दो तो बाय डिफॉल्ट है मोमेंटम एंड एनर्जी। तो ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑल द फोर आर कंजर्व। मोमेंटम एनर्जी तो हमेशा हर रिएक्शन में कंजर्व होते हैं, मास एंड चार्ज भी यहाँ कंजर्व होता है। एंड इस टाइप के रिएक्शंस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, लीविंग वन ऑफ देम ब्लैंक। ये दो दिया, ये दिया, तो ब्लैंक पूरा। तुम बोलोगे ये एलिमेंट कैसे पता लगेगा? एटॉमिक नंबर पर से, यानी कि पीरियोडिक टेबल का आपको नॉलेज है, 12th में आ गए, 11th पढ़ के आए, 12th में आ गए हो, तो पीरियोडिक टेबल में हर एक पोजीशन पे कौन होता है, एलिमेंट होता है, आपको पता है। इसे यू कैन पुट दिस बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, एंड ये कहां से आएगा, तो टोटल मारो एंड गेट इट। तो ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, जो नॉर्मली एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके।